Hello and welcome to How's That. Tonight will be the final of the Indian Premier League 2020. It is a big game between Mumbai Indians and Delhi Capitals. Uh, Good morning, Vijay. Nice to have you back here. It's an old rivalry between Delhi and Bombay dating back to the 70s, even though IPL itself is only 13 editions old. But I think that old rivalry was far more intense. There was amazing quality, and the cricket was of very high order. I mean, a Delhi Bombay match was like a test match, but this is no less. This is again great rivalry in T20 format. So let us hope we'll get fitting finale for this year's IPL. One of the legends of sports writing, Vijay, CLR James, many years ago told us that sport is only reflecting the society in which it is played. Perhaps the fact that Delhi-Bombay rivalry has degenerated to T20 cricket from Ranji Trophy cricket tells us of how perhaps we have come down as a society. But on a more serious note, Vijay, should be a good game. Rohit Sharma wanting to win the title one more time, but Delhi Capitals wanting to break the hoodoo, having made it to the final for the first time, will want to lift the title itself. Yes, Radharaman. I mean, if you talk of rivalry, I would say that rivalry meant all Bombay players were from Bombay, all Delhi players were from Delhi. So here it's a collection of players from all around. The names are Delhi Capitals and Mumbai Indians. Let us hope each player. I mean, many hearts will be broken, many hopes will be rekindled, and there lot of youngsters will see a great future for themselves in the game. Like we have been talking the whole series, let the best team win. It's very easy to say, but I think many people will be happy with a new champion. But credit to BCCI and to the IPL Governing Council, Vijay, for pulling off the tournament. They have done a very good job of ensuring that the tournament has happened without incident. Of course, they started off on the wrong foot with a few cases of COVID in the bubble, but then they managed it pretty well. And it is amazing that a whole tournament has been gone through without any further incident around health, even though many have got injured in the desert cricket. Yes, injury is part of the game. I mean, nobody wants to get injured. You exert extra or you don't prepare well for the tournament, you are bound to be on the injury list. But yes, full marks to BCCI. They pulled out a great tournament. They did it in South Africa also earlier. They did it in Dubai also earlier. So they have great organizational capabilities. They have shown it. And like you said, not one incident apart from the initial stages where they came in with COVID from Chennai. So full marks to BCCI and every member associated with making this tournament a great success, from ground staff, from umpires to the main stakeholders, the players. And I think the fans as well, they have kept the tournament alive, Vijay. They have kept the tournament's flame burning because without fans, even IPL will concede that it would not be the same as before. But full credit to the players for having played before empty stadium and then delivered their best performances and given Indian society, at least the cricket fans, something to cheer about. A lot to cheer about. I mean, I've been hearing stories of how people would wait for 7:30 p.m. and then hang on, finish all their work before that. That is how it used to be in the past also. I mean, the whole family would sit in front of the television, and some places they would have to have order second television because some people did not want to watch cricket. So they would watch their own other serials and maybe news. But here, you're right, that fans from wherever they have been, they have supported it by watching it and supporting on social media also. There have been so many debates. So I find it very interesting, very interesting and different, rather, Raman, from the times we have been from. It is now time, Vijay, to invite former India leg spinner Rima Malhotra to join us and have a conversation around IPL and around cricket. Vijay Lokpally, my colleague, and I am pleased to welcome
Rima Malhotra, who's played 63 games for India. She's got an amazing 63 caps in just 6 years' time, from 2007 to 2012. And she has been amazing leg spinner herself, picked up a lot of wickets for India. Thank you very much for joining us today, Rima. Thank you, Raska, and thank you for having me on the show. I mean, it's a pleasure actually, Rajaraman, because I was going through the records and I discovered that she was in the middle with Mithali Raj when India beat England in a test match at Taunton. So very fond memories she must be having, I'm sure. And she's had a very good career, and now she's doing some media work. She's now one of us. So welcome, Rima. It's a pleasure to have you here. Thank you so much, Vijay sir. Rima, would you want to go back to that test match that Vijay just spoke about? You must have very good memories. All of us believe test cricket is the ultimate form of the game, and I know Indian team hasn't played a test match in a long time. I'm speaking about the women's team. They haven't played a test match in a long time. I would want you to recollect some memories from that test match of yours. Well, sir, definitely रेड बॉल क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे भी और आज भी वो हम सब जानते हैं, बट ऐसी मेमोरीज अगर आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है. मुझे अभी भी याद है कि वो उस गेम में मैंने बॉलिंग नहीं की थी, मैं सिर्फ शॉर्ट लेग में बैठ रही पूरे 2 दिन तक, और मिताली ने बोला आगे बैठ के थोड़ा सा उनके कानों में भी थोड़ी सी कुछ बातें बोलना था. तो हमने काफी बात भी की थी, डिस्ट्रैक्ट भी किया था बैट्समैन को, मुझे लगा बैटर को. तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मेरी बैटिंग नहीं आएगी, ऐसा मुझे एश्योर किया था मिताली राज ने कि आपकी बैटिंग नहीं आएगी, बस आप चढ़ के ऊपर बैठो और फील्डिंग आगे की कैचेस संभालो और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करो बल्लेबाज को, जो एक स्ट्रैटेजी रहती है टेस्ट क्रिकेट में. लेकिन उसके बाद जब मेरी बैटिंग आई तो मुझे बहुत अच्छे से वेलकम मिला था इंग्लैंड वुमेन टीम से, क्योंकि द मोमेंट मैंने एंटर किया तो पूरी क्रीज तक उन्होंने मुझे बोलते बोलते ही छोड़ा था. तो मैंने बोला था मिताली संभाल लेना, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और जितना मैंने बोला था 2 दिन में उन्होंने मेरे को शायद वो आधे घंटे में इतना सुनाया था. और लेकिन वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बटरफ्लाइज डेफिनेटली होते हैं, और एक डर था कि कहीं वो डिस्ट्रैक्शन थी मेरे को, कहीं मेरी विकेट ना उसमें चली जाए. लेकिन थैंकफुली तो मिताली राज जिन्होंने उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया और मैं कुछ शॉट्स खेल पाई, और विनिंग शॉट भी जब मैंने खेली थी तो दैट वाज अ मोमेंट. ऐसा लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट अभी भी टेस्ट क्रिकेट को मिस करता होगा, करना भी चाहिए, और जल्दी मैं चाहूंगी रेड बॉल क्रिकेट भी देखना, क्योंकि ऐसी मूवमेंट्स मेरे साथ ही नहीं बहुत से खिलाड़ियों के साथ आ सकती है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है रीमा कि मिताली जो इतनी स्वीट इतनी शांत लड़की है, उसने आपको बोला कि जाइए और इनको सुनाइए पिच पे. देखिए शांत है वो, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कामनेस उनकी बैटिंग में भी दिखती है, ड्रेसिंग रूम में भी दिखती है, लेकिन वो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था, एक कप्तानी स्ट्रैटेजी थी और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इंग्लैंड जो था उस टाइम हमारे ऊपर हावी हो रखा था, हम 5 वनडे उनसे हार के आए थे, तो कहीं ना कहीं अपर हैंड था इंग्लैंड में, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड में खेलते हैं. लेकिन मेरे को याद है टॉन्टन में वो मैच था जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है, विकेट अच्छी थी वहां पे और हमें कहीं ना कहीं चढ़ के खेलना था. उस टाइम का जो वार्म अप था वो बहुत स्पेशल था. अंडर प्रेशर हम थे, थोड़े से डीमोटिवेटेड भी थे, मैं कहूंगी इस पे, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, लेकिन जो हमारा वार्म अप था वो बहुत स्पेशल था. सुधा शाह उस टाइम हमारी कोच थी, और जो वार्म अप था वो था डांस करना. हम नीचे रनिंग के लिए नहीं गए, स्ट्रेचिंग के लिए नहीं गए, हमने ड्रेसिंग रूम में भी चेयर साइड पे करके टेबल के आसपास स्ट्रेचिंग किया और म्यूजिक चला, तो टेबल को राउंड लगा के आपको डांस स्टेप करना था. हर एक खिलाड़ी को एक नया डांस स्टेप करना था, उसको पूरी टीम फॉलो करना था. तो ऐसा उस टाइम थोड़ा माहौल था, और उस डांस से कहीं ना कहीं वो जोश आया. और उसके बाद मिताली राज की स्ट्रैटेजी थी, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से हम वो मैच जीते थे, क्योंकि इंग्लैंड जब चढ़ के खेल रहा था ना तो उनको कहीं ना कहीं तंग करना था. कोई अब्यूज नहीं किया, कोई ऐसा स्लैश नहीं था, थोड़ा सा कॉमेडी साइड पे ज्यादा था, लाइटर साइड पे था, बट कहीं ना कहीं कट मैं और सुलक्षणा नायक लगे हुए थे उनके कानों में. Brilliant. This is an insight into what happens in the middle. लेकिन रीमा, आपको ये भी बताना होगा कि जब एक टीम डाउन है, आपने बताया सुधा शाह एंड मिताली राज का एक स्ट्रेटेजी था. आईपीएल में हमने देखा है मेनी टीम्स हैव बीन डाउन. फॉर एग्जांपल अ टीम लाइक किंग्स इलेवन पंजाब, bottom of the table थे, and then they rose to the 5th place. They could have finished even in the playoff. क्या किया होगा टीम ने कि इतना बेहतर परफॉर्मेंस मिला? What would they have done really to turn things around?
रासर, आई बिलीव दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट. आप पॉइंट टेबल पे अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो डजंट मीन कि आप नीचे ही रहेंगे. कहीं ना कहीं इनिशियली अगर आप उनके 6 से 7 मैचेस देखेंगे तो हर मैच में प्लेइंग 11 चेंज हो रहे थे. मैं स्पेशली किंग्स 11 की बात करूंगी. अगर आपके पास सेटल प्लेइंग 11 नहीं है, जो होमवर्क मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस का अगर हम होमवर्क देखें, सबसे अच्छा होमवर्क करके आते हैं. शायद ऑक्शन से ही उनका वो जो होमवर्क है वो स्टार्ट हो जाता है बाय द मैनेजमेंट. और वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी उसमें कमी दिखी मुझे किंग्स 11 में, क्योंकि टूर्नामेंट में आने से पहले डेफिनेटली कोविड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था. लेकिन अगर आप 9 से 10 खिलाड़ी सेम रखते हैं, 1 या 2 चेंजेस करते हैं तो समझ में आता है. अगर हर मैच में आप 3 से 4 चेंजेस करेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड से भी खेल रहे हैं कि क्या वो अगला मैच खेलेंगे अगर वो ये मैच अच्छा नहीं करते. और ऐसा प्लेयर मैं बताऊं, अगर ये उनके डाउट आता है उनके माइंड में, तो परफॉर्मेंस शेक होता है. और वही स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में देखने को मिला. लेकिन उसके बाद क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस जब एंट्री की है तो बॉस की तरह खेले हैं. आपके पास एक सेटल ओपनिंग पेयर था. मयंक के नीचे आने से आपके पास थोड़ा बैटिंग लाइनअप भी लंबा हो जाता है. लेकिन उसके बाद आपने क्रिस गेल को 1 डाउन खिलाया. वो भी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि क्रिस गेल थोड़ा संभल के खेले. अगर हम सारी बैटिंग उनकी देखें तो आमतौर पर पहली बॉल से ही बैंग बैंग करते थे. लेकिन अभी स्टार्टिंग में 6 से 7 बॉलें देखते हैं, 10-12 बॉलें देख के उसके बाद अटैक करते हैं. उनका शॉट सिलेक्शन अच्छा था, प्लेइंग 11 परफेक्ट थे. राहुल की जो फॉर्म थी वो पर्पल पैच था. तो हर चीज अच्छी थी. स्पिनर्स उनके अच्छे थे. यंग सेंसेशन में कहूंगी रवि बिश्नोई, आई कैचिंग उनकी बॉलिंग थी. जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने शुरू किया था वो शायद उसको कंटिन्यू किया. और जो उनके डगआउट में बैठे थे अनिल कुंबले, अगर वैसा कोच आपके पास है, वैसा माइंड आपके पास डगआउट में भी है जो डगआउट को शांत रख सकता है, स्टेबल रख सकता है, वो बहुत मायने रखता है. शायद वो एक रीजन हो सकता है जो मुझे दिखा टीम का बाद में अच्छा करने का रीजन. रीमा, आप इतना बढ़िया एनालिसिस करती हैं कि और इतने मतलब बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया कि किंग्स 11 पंजाब की क्या प्रॉब्लम थी और कैसे अच्छा कर सकती थी. सो रीमा, जब आप ये आईपीएल देखती हो, राइट, जैसे चल रहा है, तो इसमें से क्या जो है, क्या स्ट्राइकिंग फीचर्स लगे आपको इस टूर्नामेंट में? बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, और कुछ एक छोटे लोग के बाहर चले गए हैं. बट इस टूर्नामेंट का फीचर क्या रहा आपकी नजर में? देखिए, एक तो डिफिकल्ट टाइम है, टफ टाइम पे ये पॉसिबल होना ही हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई. जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ और दुबई गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया, पहले तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगी. क्योंकि पिछले 6-7 महीने बहुत टफ थे, क्योंकि आप घर बैठ रहे हैं. नॉट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी, एज एन एल्डर पर्सन भी आपके फैमिली मेंबर्स घर पे हैं जिनको बाहर जाने की आदत है या काम करने की आदत है. तो घर पे बैठना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली भी वो चैलेंजिंग था. इस आईपीएल ने ना केवल आपकी मेंटालिटी चेंज की, बल्कि आपको मैं कहूंगी 3 से लेके शाम को 10 बजे 11 बजे तक बिजी रखा है. कई बार शाम जो आप मन करता है बाहर जाएं, बाहर खाएं, आप घर बैठ के आराम से बैठ के टीवी का लुत्फ उठा सकते हैं, मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन साथ ही क्रिकेटर्स को जो कि घर बैठे थे, जिनको कुछ ना कुछ करना चाहते थे, वो जो एंगेज किया है और एक न्यू नॉर्मल में खेलने के लिए उनको मेंटली टफनेस देती है. क्रिकेट हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत से चैलेंजेस को फेस करना सिखाता है. ये सबसे बड़ा चैलेंज था, बायो बबल में रहना, क्वारंटीन होना, उसके बाद एक दूसरे के होटल में ना विजिट करना, और विदाउट एनी सेलिब्रेटिंग जो उनकी पार्टीज होती हैं आफ्टर द मैच, उसके बिना. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिसमें आपको सिर्फ क्रिकेट का मजा उठाना है. और ये नई चीज मैं कहूंगी एज अ व्यूअर. और अगर मैं कहूंगी सिर्फ इस आईपीएल में मुझे क्या दिखा, इस आईपीएल में मुझे सिर्फ क्रिकेट दिखा. उसके बाद की पार्टीज का मुझे नहीं पता, जो पहले होती थी अभी नहीं हुई. तो आप टीम के पास, उस टीम में गए होटल में, टीम रूम में आपने अपनी टीम के साथ जेल किया, अपनी फैमिली के साथ जेल किया. और जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने भी बहुत अच्छे एफर्ट दिखाए टीम रूम बना के, जहाँ पे हर फैसिलिटी थी. जैसे मुंबई इंडियंस का मैंने देखा, राजस्थान रॉयल्स का देखा, हर टीम फैसिलिटीज दे रखी है, बच्चों के लिए भी, उनकी वाइफ्स के लिए भी, टीम मैनेजमेंट के लिए भी, टीम प्लेयर्स के लिए भी. तो ये एक नई चीज है जो हम कहते हैं ना कि भाई हमें तो सेलिब्रेशन चाहिए, हम तो भाई दूसरी टीम से मिले बिना रह ही नहीं सकते, हम तो घूमे बिना रह नहीं सकते, हम शॉपिंग बिना रह नहीं सकते. इस आईपीएल ने प्रूव कर दिया है कि आप सिर्फ क्रिकेट के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं. You have been a leg spin bowler. There have been many leg spinners who have been very productive in IPL this year. There has been Rahul Chahar for Mumbai Indians, and then for Hyderabad there has been Rashid Khan, and you've got some wonderful spinners in M. Ashwin, for example, from Kings 11 Punjab, along with Ravi Bishnoi, and then there was Rahul Tewatia. I mean, it's a very long list. Which of the bowlers has impressed you? Please don't say Yuzvendra Chahal or Rashid Khan.
इनके अलावा which other leg spinner has impressed you the most? In my mind, I'll say Ravi Bishnoi. I mean, he's a under 19 player and playing with some legends. He made a name of himself, which is a great thing. I mean, in every situation, he bowled brilliantly, whether it's with the new ball or in the death overs. So he has the control. Being a leg spinner, is a map leg spinner. So the most important thing is control. Bowling against some legends and in difficult situation, you need the control, you need the proper mindset. और वहां पे रवि बिश्नोई ने कहीं ना कहीं एज रख ली है. Although I'm impressed with Murugan Ashwin also, but I'll give 10 out of 10 to Ravi Bishnoi. Yeah, and since you are a spinner, इसमें तो हर कोई फास्ट बॉलर्स की बात करता है, क्या बाउंसर था, क्या यॉर्कर था और क्या स्विंग था. तो स्पिनर्स की कितनी अहमियत देखी आपने इस टूर्नामेंट में? उनके पास स्किल तो है, कितने स्किल्स वो यूज करेगा और हमेशा प्रेशर में डालता है, कई बार नई बॉल से डालता है, कई बार लास्ट में डालता है, बीच के ओवर डालना पड़ता है. तो स्पिनर की क्या अहमियत है T20 क्रिकेट में? बहुत है. देखिए, जब स्टार्टिंग में जब T20 आया था तो ऐसा लग रहा था कि स्पिनर्स की तो डेथ है, इनको तो पड़ने ही वाली है, और पड़ती भी थी, क्योंकि इंडिया में जो विकेट्स थी, अगर आप वानखेड़े में खेल रहे हैं, ईडन गार्डन में खेल रहे हैं, स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था. हाँ, अगर आप चेन्नई में खेल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बाकी विकेट्स कहीं ना कहीं फ्लैट थी और स्पिनर्स को 40-45 रन पड़ना आम था, अगर आप बैंगलोर के विकेट पे देखेंगे. लेकिन अभी के आईपीएल में स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, और जिस तरह से उनको मौका मिला है अपनी जो स्ट्रेंथ पे बॉल डालेगा, क्योंकि विकेट्स ने कहीं ना कहीं हेल्प किया है. ड्राई विकेट्स थी, बाद में डेड विकेट्स हो चुकी थी, टायर्ड विकेट्स थी, और जिस स्पिनर्स के पास वेरिएशन है, इसलिए मैंने कहा कि अगर राशिद और युजवेंद्र चहल के बाद कोई बॉलर को मैं लूंगी एज मतलब स्पेशल लेग स्पिनर, तो रवि बिश्नोई. क्योंकि अगर आपके पास गुगली है, आपके पास फ्लिपर है, आप स्लोअर वन डाल सकते हैं. राहुल चाहर फॉर एग्जाम्पल, उनके पास भी अच्छी गुगली है. तो अगर आप अपनी वेरिएशन का यूज करते हैं और साथ में विकेट आपकी हेल्प करता है, तो स्किल भी है, मेंटल एस्पेक्ट में भी आपके पास एक है प्लस पॉइंट है कि हाँ, विकेट मेरी हेल्प कर रही है. चाहे ग्राउंड छोटा हो, शारजाह में भी देख लीजिए कि बाद में राहुल तेवतिया ने भी अच्छी गेंदबाजी की है. अगर आपके पास कंट्रोल है, अगर आपके पास जिगर है, स्पेशली जो एक लेग स्पिनर के पास होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी विकेट पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी भी बल्लेबाज के सामने सक्सेसफुल हो सकते हैं. रीमा, थोड़ी सी युजवेंद्र चहल की भी बात कर लेते हैं. इस आईपीएल में ही हैज बोल्ड विद द वेट बॉल एंड ही हैज बोल्ड ब्रिलियंटली. मुझे नहीं लगा कि वो उनको कहीं से भी परेशानी हुई. What would he have done to retain that much control over a wet ball? Because उनके कई matches they were bowling second and we got to see others struggle, including in Sharjah. But Chahal was a standout performer for RCB. See, Raj, I believe कि कहीं ना कहीं टीम प्रिपेयर थी, और जब प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपको पता है कंडीशंस का कि ड्यू फैक्टर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दुबई में जाके जब आप आईपीएल खेल रहे हैं, तो जो प्रोसेस था, जो प्रैक्टिस सेशंस था, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली उसमें वर्क किया गया. आपने जरूर अपने स्पिनर्स को वेट बॉल्स दी होंगी और देनी भी चाहिए, क्योंकि हमने भी जितनी प्रैक्टिस, जब T20 फर्स्ट खेला था हमने, तब मैं उस टीम का हिस्सा भी थी, वो मैच खेली भी थी मैं इंग्लैंड में, तो हमें बताया गया था ड्यू फैक्टर हो सकता है. तो हमारे कोच ज्योति सुदर्शन, उन्होंने हमें कुछ वेट बॉल्स दी थी कि आप बीच बीच में इनसे भी बॉल डालिए. हर बॉलर को कंपल्सरी था कि आप वेट बॉल से बॉल डालेंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो प्रोसेस जरूर फॉलो किया होगा. युजवेंद्र चहल क्या, हर टीम ने वो प्रोसेस फॉलो किया होगा, और वो जो प्रैक्टिस थी वो जरूर मैचेस में काम आई होगी. और युजवेंद्र चहल के पास कंट्रोल है. एक स्पिनर के पास अगर आप वो नई बॉल से भी गेंदबाजी करता है, पुरानी बॉल से भी करता है, एक तो आपके पास कंट्रोल आ चुका है. नया बॉल क्योंकि स्लिप करता है कई बार हाथ से, तो पहला एडवांटेज कि आपको नया बॉल से बॉल डालना आता है, और दूसरा एडवांटेज आपने प्रैक्टिस में डेफिनेटली ड्यू में गेंदबाजी की होगी और विद वेट बॉल की होगी. अगर आपने प्रोसेस की, अगर आपका प्रोसेस अच्छा था, तो आपका रिजल्ट मैचेस में शो हुआ. रीमा, मेरा एक सवाल है, और ये सवाल आई एम आस्किंग आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ विजय लोकपल्ली, माय फ्रेंड एंड कोलीग. ये मिस्ट्री स्पिनर क्या चीज है? Because we have seen in IPL someone like a Sunil Narayan being called a mystery spinner. Varun Chakravarti has been given that tag. आप स्पिनर रहे हो, मिस्ट्री स्पिनर कौन है और क्या करता है? देखिए, नॉर्मल स्पिनिंग, रेगुलर स्पिनिंग की बात करें तो हम उनका हाथ रीड आसानी से कर सकते हैं. आपको पता है कि गुगली सामने से आएगी तो ये लेग स्पिनर है, पीछे से आएगी तो ये गुगली है. लेकिन मिस्ट्री स्पिनर होता है जब वो थोड़ा सा हाइड करके आता है या अपनी फिंगर्स का ज्यादा यूज करता है. जैसे कई बार आपने हाल ही में नारायण का अगर एक्शन चेंज हुआ तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो थोड़ा सा पीछे हाथ होल्ड करके आता है. जब आप अपने रिस्ट को पीछे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लेट
अपना हाथ शो करते हैं। वहां पे मिस्ट्री बॉल आप हाथ को सामने से भी रिलीज करते हैं, जो बॉल स्पिन किस तरफ करेगा थोड़ा रीड करना एज अ बल्लेबाज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप हाइड भी करते हैं, आप स्पिन को लेट भी छोड़ते हैं। तो जब आप पजल करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, तो वो मिस्ट्री स्पिनर कहलाता है। जब रीड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है और पॉइंट ऑफ डिलीवरी जो होता है थोड़ा चेंज होता है रेगुलर स्पिनर से, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो चाहे वो लेग स्पिनर हो। वरुण चक्रवर्ती एक उसमें नाम है जो कहीं ना कहीं मिस्ट्री स्पिनर में आता है। हाँ, बिकॉज मतलब मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था, कई बार मैं राजारामन से भी ये बातें करता हूँ कि एक होती है ऑफ स्पिन, एक होती है लेग स्पिन। गूगली मार दी, फ्लिपर मार दी आपने, लेफ्ट आर्म है तो वो आर्म बॉल है उसके पास, राइट, वो भी तो छुपा के तो मारता है, आपको नहीं पता लगती आर्म बॉल। सो ऐसी ये कौन सी बॉल आ गई भाई, मिस्ट्री बॉल? ये तो आर्म बॉल आपने सर दिखती है, आर्म बॉल दिखती है क्योंकि आप सीम रीड करते हैं। अगर आप बैट्समैन हैं तो आप सीम रीड करते हैं कि किस तरफ से सीम आएगी और किस एंगल से आएगी, क्योंकि आर्म बॉल आप सीधा कम मारते हैं, साइड एंगल मारते हैं। लेकिन मिस्ट्री बॉल जो होता है वो आप कहीं ना कहीं हाथ पहले तो पीछे छुपाते हैं, उसके बाद आप फिंगर से सामने से छोड़ते हैं, जिसपे आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये बॉल अंदर को कट होगा या बाहर को कट होगा। वो स्पिन नहीं होता, वो कट होता है। तो मेरे हिसाब से वो मिस्ट्री स्पिनर कहलाता है। हाँ, तो वही कुंबले भी तो वही करते थे ना, कुंबले भी वही करते थे। कुंबले का भी जब बॉल निकलता था जो, और मुरली कार्तिक का भी आम बॉल था, वो पता नहीं लगता था, वो लाता वहीं से था, लेकिन बीट करता था स्पीड पे ऑफ द पिच, वो एकदम गोली की तरह निकलती थी। तो एनीवे किसी और दिन बहस करेंगे आपसे ये मिस्ट्री बॉल क्या होता है। तो रीमा, मुझे ये सवाल जरूर पूछना है कि ये कहा जाता है ये तो मेंस गेम है, राइट, इसमें दम चाहिए, ताकत चाहिए, सिक्सेस मारने हैं, विमेंस क्रिकेट की बाउंड्री भी अंदर है, राइट। सो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? अगर मैं कहूंगा नहीं भाई मैं क्यों देखूं आपकी क्रिकेट, ये तो छोटी बाउंड्री की गेम है, कोई दम से कोई बॉल डालता नहीं है, पावर नहीं है, तो आप मुझे कैसे काउंटर करोगे कि मैं चुप बैठ जाऊं? नहीं, ये विमेंस का भी क्रिकेट है। देखिए, क्योंकि फिर मैं ये कहूंगी शायद आपने कुछ मैचेस पिछले समय से देखे नहीं है, क्योंकि पावर भी आ चुकी है, दमखम भी आ चुका है, और जरूर 60-65 यार्ड की बाउंड्री होती है, सेंटीमीटर्स की बाउंड्री होती है। लेकिन जो जब हरमन, शेफाली वर्मा या झूलन या मैग्लेनिंग या हीली जब छक्के मारते हैं तो उन्होंने 80-80 मीटर के भी छक्के मारे हैं, तो वो 60 का बाउंड्री भी काफी छोटा नजर आता है। तो कोई भी ग्राउंड क्लियर करने वाला अगर आपके पास खिलाड़ी है, दमखम रखता है, तो मैं कहूंगी मेंस और वुमेन्स की गेम में देखनी चाहिए, आपको सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली बैंग बैंग या क्रिस गेल अभी तक नहीं आया, लेकिन टेक्निकली साउंड छक्के मारने वाले हार्ड हिटर्स और पावरफुल हिटर्स इस गेम में आ चुके हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंडिया के बल्लेबाज देखे हैं तो इनमें वो कई खिलाड़ी हैं, पहले एक आधा होता था लेकिन अब 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे शॉट्स खेल सकते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स में भी बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और not to forget the final of T20 World Cup. आप मुझे गलत मत समझना रीमा, मैंने शांता रंगस्वामी, शुभांगी कुलकर्णी, डायना एडलजी, ये सब जो है उस जमाने में बहुत क्रिकेट विमेंस कवर किया है, एंजॉय भी किया है, ये मेरे सब अच्छे दोस्त हैं। सो ये बेसिकली हम चाह रहे थे कि आपको उचकाएं और थोड़ा सा आपसे जो है एक गैदर करें कि विमेंस क्रिकेट में कितना जोश। जी बिल्कुल, देखिए जोश तो पहले भी था, लेकिन शुरुआत में इतने हार्ड हिटर्स नहीं थे, टेक्निकली गेम ज्यादा खेला जाता था, तब ये क्रिकेट शुरुआती दौर में था। उन्होंने भी बहुत अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला है, शांता मैम, डैनियल जी, ये सब मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं। मैंने इनको खेलते हुए देखा, बट जो मैंने इनकी स्टोरी सुनी है कि किस जिगर से ये खेलते थे, डैनियल मैम के अंडर तो मैंने अपना करियर में कहूंगी मैंने निखारा है, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। तो वो जिगर उन खिलाड़ियों के पास था, वो जिगर अब के खिलाड़ियों के पास भी है, लेकिन अभी जो एड ऑन हुआ है वो पावर हिटर्स एड ऑन हुए हैं, वो T20 क्रिकेट एड ऑन हुआ है जो पहले नहीं था। तो अब आप भी उस गेम का लुत्फ उठा सकते हैं जो मेंस क्रिकेट में T20 कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं, वुमेन्स में भी अब वो देखने को मिल सकता है। हाल ही में भी सौरव गांगुली ने भी एक इंटरव्यू में बोला है कि इन द कमिंग 2 years फुल फ्लेश IPL देखने को मिलेगा और विद फ्रेंचाइजीज बेस्ड IPL देखने को मिलेगा। तो एक नया चेहरा आएगा, तब आप भी एंजॉय करेंगे। एक बार फिर हम इंटरव्यू करेंगे, तब आप पूछेंगे कितने छक्के पड़े इस मैच में। All right. Thank you very much, Rima. It has been engaging, very illuminating having a conversation with you. Thank you, Rima. It was such a wonderful time speaking to you. I mean, we have spoken on other issues so many times, but this was very, very special. And I wish you all the best. And someday, like you say, 2 years down the line, it will be great to sit and analyze franchisee women's cricket league with you. For sure, sir. And thanks again for having me on the show. It was wonderful chatting with you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Vijay, Howzat will remain incomplete if we do not have a couple of questions from the members of North Stand Gang, Mumbai.
Here is Harshil Shah asking us a few questions today. Do you think with Stoinis opening the batting, DC have found the solution to their biggest problem this year? This is Mumbai's third final in the last 4 years. Is it mainly because they have stuck with their core team throughout these years, like Rohit Sharma, Bumrah, Hardik, Krunal Pandya, and Pollard? And is Delhi a team with so much talent and potential? This is a back-to-back playoff spot and in their first final in the whole IPL history. Is this final Mumbai's to lose? Is the pressure too much on Delhi? Harshil, a set of great questions, no doubt about that. Stoinis coming to open the innings has resolved a lot of issues for the Delhi Capitals, no doubt about that. It has allowed them to bat freely, and look at how Shikhar Dhawan has responded as well to Stoinis opening the innings. The pace of scoring has accelerated, and that resolves a lot of issues for Delhi Capitals. If they can play like this freely tonight, then Delhi Capitals will be quite a handful. But then they're up against Jasprit Bumrah and Trent Bolt, and that will be a good contest to watch. I think we make too much about Mumbai Indians having played so many finals earlier and won so many titles. It depends on the players. I think a lot of them have played high pressure cricket. Shikhar Dhawan has, Kagiso Rabada has. And when you see, and Ashwin, of course, how can you forget Ashwin? When you see them having come through tight situations, experienced it all over their life, I don't think it matters too much if they have played for Delhi Capitals or not before. And the fact that they will be hungry will be a huge factor. They will want to win the title, and it will be Mumbai Indians' match to lose if they take Delhi Capitals lightly. I don't think Mahela Jayawardene and Rohit Sharma will make the mistake of assuming that the match is already won. Right, Vijay. We must wind up as well, but before we go, we need to tell the viewers what we think about Mumbai Indians versus Delhi Capital one more time. Will it be Mumbai Indians, which has played some outstanding cricket throughout the season, or will it be Delhi Capitals, which suddenly seem to have found a different gear altogether with Marcus Stoinis batting at the top of the order and them finding place for Hetmeyer to come in and play those big shots? Don't you think, Rajaraman, it's going to be a very tough choice for us to pick? We should not pick, because honestly, each team deserves the title. But yes, everybody would love a new winner, Delhi if it wins. But nobody should grudge Mumbai also, because it has been the most consistent team in this tournament with some champion cricketers. Let us hope we get a good contest. I'm sure we will get a very good game, Vijay. The curators have done really well to ensure that the pitches for the playoff matches have been of a pretty high standard, even though there was one game in which the scores were low. But I think that as a contest, you have seen very, very good quality cricket overall. Yeah, very good quality, competitive cricket. There was room for everyone, scope for everyone: batsmen, bowlers, fielders, spinners, fast bowlers. So it had everything going. There were some splendid umpiring decisions also, we must admit, and some good. We enjoyed the banter of the commentators, the banter on the social media. So it's been a good IPL tournament. Right, Vijay. On that note, and wishing you and everybody who's watching this the very best tonight, and hoping that the better side wins. The one that turns up and puts its A game on the park will go on to win and entertain all of us. Thank you very much, Vijay. I hope to see you tomorrow morning. Yeah, thanks a lot. Thank you.